Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, you all know that which chapter is going on? Chapter number 3. And what is the name of this chapter? The name is How Many Squares? So, what are we learning in this chapter? In this chapter, we are learning area and perimeter. So, what is the area? Area का मतलब क्या होता है? Means here you can see the blue color. So that is called area. Means ये shape ने कितना space cover किया है. Right? It is called area. And what is perimeter? Perimeter means the length of the boundary. Means ये जो shape है वो कितने सेंटीमीटर में पूरा किया हुआ है. That is called perimeter. In this, we have completed this shapes, and the shapes are given on which page number? It is textbook page number 45. So, open your textbook page number 45, and this is you have already drawn that I have given you in homework. ये हमने homework में किया था, right? And already मैंने आपको ये draw करके ही दिया था, right? So, related to the shapes, some question answers are given. Some questions are given in your book. So, for that, we have to find out perimeter of all the shapes. ये सारे shapes का हमको क्या find करना है? Perimeter. So, are you all ready? See, how many shapes we have drawn? 12. Right? Total हमने 12 shapes draw किए थे. So, here, the first question is, how many different shapes can you draw? How many shapes we have drawn? 12. So we can write over here 12 shapes. Okay. And now let's find out perimeter one by one. And you have to write perimeter in your notebook also. Okay. In your notebook also you have to find out perimeter of all the shapes. So let's start with the shape 1. ये one shape, first shape ये है, उससे स्टार्ट करें. एंड यू हैव टू गिव नंबर्स टू दी शेप्स. आपको क्या करना है? नंबर्स भी दो. राइट? हियर आई हैव रिटन नंबर 1. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. सी, एंड यू ऑल नो दिस ग्रिड. दिस स्क्वायर इज ऑफ 1 centimeter. सो दिस इज ऑल्सो 1 centimeter. सो आई एम राइटिंग 1 over here. नाउ हियर ऑल्सो 1 and here 1, 2, 3. So this is 3. Here we can say 1. See, you have to take care. आपको इसमें ध्यान देना है, right? Otherwise, you cannot understand what is the meaning of perimeter, right? Now here see 1, 2, 3 and 4. So this side we can write 4, and this side 1 and 2. This side 2. Now see, we have 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 4 plus 2, right? So कितना हुआ? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 4, 10. 10 and 2, 12. So, shape 1 has 12, right? Perimeter 12. But you have to write in notebook. And let's see shape 2 also. That we have already seen in the last video. See, 4 over here. Then plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 11 and 12. This shape also 12, right? Perimeter is 12. But see, I have written in notebook. In notebook, you have to write like this. For example, page number 45 you write. After that, perimeter of all the shapes. Here, perimeter of shape 1. Shape 1 का क्या perimeter है? देखो हमने यहाँ से start किया. For example, it is your shape 1. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 2. तो I have written 2. उसके बाद ऊपर 1 है तो 1 लिखा. उसके बाद 1 तो 1 लिखा. उसके बाद क्या है? 3. Then see, 1 is here, then 4 is here, and then over, because we have started from here. So all the numbers I have written, right? And then I have done total. So that way you have to find out. Now see, in shape B. Shape B में भी ऐसे ही करना है. जैसे सबसे पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 4, then 1. So that way 4, then 1, right? उसके बाद 2, 1, 1, 1 and 1. See here.
2, then 1 2 3 4 and 5 times 1, राइट. तो जितने भी ऐसे 1 1 1 1 हमने काउंट किया था वो सब हमने काउंट कर लिया. सो 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So shape 2 also has 12 perimeter. Right, now what about shape 3? Let's see here. See, 1 2 3 4 5. It is 5. So this side also 5. Right, and here only 1, and this side also 1. So 5 plus 5 10, then 11 and 12. Perimeter is 12. So see here how to write. 5 centimeter plus 1 centimeter plus 5 centimeter and plus 1 centimeter. See, like this. पहले 5 था. It is perimeter of shape 3. First 5 centimeter plus 1 centimeter, then plus 5, then plus 1. So the total is 12. Right? Now let's see number 4. ये जो number 4 है उसमें भी आप देखो. See, 1 and 2. 2 squares. So we can write 2. Then 1 and 2. 2 squares. So again 2. Now here see 1, 2 and 3. So here 3. Only 1. 1 and 1. So see, 2 plus 2 plus 3. 2 2 3. Then 1 1 1. Right. So here also we can write like this. See, 2 centimeter plus 2 centimeter plus 3 centimeter plus 1 and plus 1. But centimeter you have to write. That is compulsory. And the total of all the numbers 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is 10 centimeter. Right. So shape 4 has 10 centimeter. It is, we are finding what? Perimeter. So here I am writing 10 centimeter. Now here shape, which shape? 5. अब 5 shape में भी ऐसा ही है. देखो 2. Then this side also you have to count 1. Then again 1. Then here 1 and 2. Then this side 1 and 2. Then this side again 1. Then 1. Then this side 2. So here let's count together 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So shape 5 has also 12. So that is also we have written. मैंने भी यहाँ पे लिखा है ऐसे ही, जितने भी नंबर्स आए उतने नंबर्स लिख लिए और उसका एडिशन कर दिया. राइट. तो आपको नोटबुक में ऐसे सारे सम्स लिखने ही है. नाउ लेट्स सी शेप 6. ऑल दी साइड्स आर 1 1. सी 1 2 3 4 5 6. This is 7 8 9 10. This is 11 and this is 12. Right. So how many times 1? This is 12 times 1. So again the perimeter is 12. Right. So you can write in your notebook 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter like this 12 times. Okay. Because you have to write this. आपको ये 12 टाइम्स जैसे 1 1 1 लिख के फिर उसका एडिशन ऑब्वियसली 12 ही होगा. समझ में आ रहा है ना? इट इज वेरी इजी. नाउ सी हियर नेक्स्ट शेप नंबर 7. 7 में क्या है? लेट्स फाइंड आउट. हियर 3. सी 1 2 and 3 squares. So 3. This side 1 and 2 square. This side 1. Again we move here 1. यहाँ पे 1 आएगा. Then here also 1 and here also 1. So 1 2 and 3. Take care. Now again 1 and here 2. Understand? So we will start 3 then 2. So here also see I have written first 3 centimeter, here 3 centimeter, then 2 centimeter, then again 1 centimeter, then this side 1 centimeter, then again see this 1 centimeter, then this side also 1 centimeter, then here 1 centimeter and 2 centimeter. Right. Now total of all this number will be 12 centimeter. ये सबका टोटल है वो कितना होगा? 12. You can do it by yourself. इसका 12 आपको करना ही है. Now shape number 8. Now see shape number 8. It is also easy. Shape 8 भी बहुत ही easy है. Right. But एक बार अगर आपको समझ में आ गया so you can do it by yourself. See here 1 and 2. Then 1. Then again 1.
then 1 and 2, then this side 1, then 1, then here also 1, then this side 1, फिर यहाँ पे आए तो 1, फिर इस साइड गए तो भी 1. समझ में आया? तो ये 1 कितनी बार होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 times 1. How many times 1? 8 times 1 and again 2 and 2. तो इसका भी आप अगर एडिशन करो तो कितना होगा? देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. इसका भी टोटल पैरामीटर 12 ही होगा. और आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है जैसे 2 then 1 2, 1 plus 1 then 2 then 1 2 3 4 and 5 and 6. राइट, आपको जितने भी हमने 1 1 1 लिखे, this way you have to write in your notebook and total will be 12. उसका टोटल भी 12 होगा. I will send you this picture. You have to write in your notebook, right? And it is very, very, very easy. Now you know how to find perimeter and area very well. So do it first, try to do by yourself and then verify your answer from photo, right? Now see question number shape 9. Shape 9 maybe 1 2 3. This side 3. This side how many? 1. This side again 1. This is 2 and this is 1. This side we can say 2. This is 1 and here also 1. Right, now let's do the total of all this number. This is 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So shape 9 has also 12. Now shape 10. Now shape 10. See this side 2, then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Shape 10 has also 12 perimeter. So understand, almost हमको सब में 12 12 12 perimeter ही आया है. Only one shape has 10 and this is shape number 4 जो ऊपर गया. Right, now see here number 1 means here 1, then 1 and 2 squares. So 2. This side also 2 squares. So I'm writing here 2. This side it is 1 and 1 2 3. So here 3 and this side also 1 2 3. So 3. See 3 plus 3 6 7 8 9 10 11 and 12. Oh my God. Shape 11 has also 12 perimeter. Now shape 12. Let's see here 1 2, then 1 1, then here 1 2, then this side 1, this side 1 1 and 1, this side also 1 and here also 1. See हमने जितनी भी लाइन ड्रॉ की है, जितने स्क्वायर्स को कवर करके उतना ही लिखना है. राइट, नाउ अगेन सी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Again 12. Perimeter is 12. Right. So all the numbers. See, I have written in notebook in number 9 also. Wherever you are writing the number, that number you have to write like this. Okay, and here I have written directly. Now no need to write numbers like this. Only you can write total, because up to 9 you have done. Now you know very well how to find perimeter. That's why here we have written only answer. Right. So like this way you have to do in your notebook. Understand? Now let's solve the question answers. See, related to this, we have already written 1. Now in question B, what shape has the longest perimeter? How much? So have you observed one thing? Which shape has the longest? I think almost all the shapes has 12 perimeter, right? So how can we write which has the longest? But don't worry, we will write answer of it, right? हम उसका आंसर लिखेंगे. See in notebook, only shape 4 has the smallest perimeter. So हमने देखा only एक ही shape में perimeter smallest था out of 12 shapes. Rest of the shapes have same perimeter. बाकी सब का तो perimeter कैसा हुआ? Same. और 12 और 10, right? हमारे पास दो ही है. One is 10 and one is 12. So which is the longest? 10 or 12? It is
12, right? And it is longest. Understand? समझ में आया? Because all the shapes has same perimeter except shape 4. Okay? So this way you have to write the answer. Now next it is C. Which shape has the shortest perimeter? It is also very easy. अभी तो मैंने बोला कि हमारे पास तो दो ही आया, एक तो 10 और एक 12. And how much? कितना है? In centimeter we have to write. Okay. So which shape has the shortest perimeter? कौन से shape को shortest perimeter है? Shape 4, right? And it is how many centimeter? 10 centimeter. So in notebook you have to write like this. Shape 4 has the shortest perimeter. It is 10 centimeter. Understand? जो shape 4 है उसका हमने find किया था perimeter, तब कितना आया था? 10, right? तो पहले तो which shape लिखा है, उसके लिए हमने shape का नाम दिया. And how much? That is also given. That's why we have written the length, right? इसीलिए हमने उसकी length लिखी 10 centimeter. Now D में क्या है? See, what is the area of the shape? What is the area of the shape? All the shapes has the same area, right? They all are covering 5 squares. See, so it is, we can write 5 square centimeter. That's so simple. That's very easy, right? It is very easy. But you have to write in notebook also like this. See, what is the area of the square? सब shapes का area क्या है? There are 12 shapes and each shape has complete 5 squares, right? That you know very well because we have drawn figure like this only. हमने 5 square से ही figure बनाई थी. So all have सेम एरिया. अंडरस्टैंड? सबके पास कितना एरिया होगा? 5 स्क्वायर का, कंप्लीट 5 स्क्वायर्स. सो दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर, ओके, इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी in your textbook page number 46, one interesting puzzle is given. This puzzle is very interesting, right? See what is written. Did you get all the 12 shapes using 5 squares? See here, this also the same thing as before we have done. This all are also covering 5 squares. If you see this carefully, so you can know that. See, all the shapes are covering 5 squares, right? So did you get all the 12 shapes using 5 squares? क्या आपको मिले थे ऐसे? Let's read more. यहाँ पे है all 12 shapes are arranged here to make a rectangle. और ऐसे 12 shapes को arrange किया है कि एक big rectangle form कर रहा है, right? आप देख रहे हो ना कि ये big rectangle है, वो अलग अलग शेप को हमने ऐसे जोड़ के, इमेजिन करो कि ये जो सारे शेप्स है उसको ऐसे, जैसे पजल कैसे होती है उसको अलग अलग है, राइट? बट आपने उसको इस तरीके से अरेंज किया कि एक रेक्टेंगल शेप आ गया. सी दिस इज अ 10 by 6 रेक्टेंगल. यहाँ पे देखो 6 by 10, यहाँ पे 6 स्क्वायर्स है, यहाँ पे 10 स्क्वायर्स है, राइट? सो 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which the shapes make a 10 by 6 rectangle. और कितने तरीके से हो सकता है? This is 2000 ways. हम 2000 तरीके से ये शेप को अरेंज करके 10 by 6 का रेक्टेंगल बना सकते हैं. Oh my God! तो आप क्या करेंगे उसमें? Draw all the 12 shapes on the sheet of cardboard. If you don't have cardboard, आप क्या करो, आपके पास नोटबुक तो होगी स्क्वायर लाइन वाली, उसमें ये 10 by 6 का एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लो. फिर इसमें जैसे शेप है ना वही ड्रॉ करो और फिर उन सबको कट करो, राइट? देखो, एंड कट देम. फिर इसी शेप्स को कट करो. दिस इज यू हैव टू डू, राइट? ये आपको करना ही है. अलग अलग कलर कर दो. पहले तो क्या करो, आप उसको पहले ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करो और वो आपके पास अगर स्क्वायर लाइन वाला पेज है मैथ्स का, जब हम छोटे थे तब उस बुक में लिखते थे, तो आपके पास वो तो होगा ही, राइट? अगर नहीं है देन यू कैन आस्क फ्रॉम योर ब्रदर सिस्टर, जो छोटे बच्चे हैं उसके पास भी होगा. और नहीं है तो यू हैव टू ड्रॉ. दैट इज ओनली सोल्यूशन. आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ड्रॉ. तो आप ऐसे 10 by 6 का एक ड्रॉ कर लो.
फिर क्या करो, ऐसे ही शेप बनाओ, इसमें जैसे है वैसे शेप बनाओ, एंड देन यू हैव टू डू कलर। ओके, फिर आपको कलर करना है और उसके बाद ये शेप्स को परफेक्टली कट करना है। आप उसको कट करो और कट करके हमारी पजल रेडी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको वापस स्टिक करना है। कोई दूसरा पेज ले लो, फिर उसमें हम उसको स्टिक करेंगे पजल को। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10 by 6 रेक्टेंगल, राइट। और अदर वे में अगर आप दूसरे तरीके से करते हो और आ गया ऐसा, देन ऑल्सो वेरी गुड। बट आपको क्या होना चाहिए, फिर 10 by 6 का एक रेक्टेंगल ही बनना चाहिए, चाहे ये स्टैंडिंग हो, स्लीपिंग हो, जैसा भी हो, बट वी वॉन्ट अगेन रेक्टेंगल 10 by 6। रेडी? सो ट्राई इट एंड यू विल हैव फन। बहुत ही मजा आएगा, राइट। भले ही आप एक दिन में ना करो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक अ वीक। आप एक वीक में भी कर सकते हो पूरा, राइट। मैं आपको एक वीक का टाइम दे रही हूँ। एक वीक में आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ और देखो कि इससे अलग आप कर सकते हो, राइट। बट लेट्स ट्राई तो करें कि कैसे हो सकता है ना। तो आपको ये करना है। नाउ सी, ट्राई अनदर पजल। अब दूसरी पजल आई, यू हैव टू मेक 5 by 12 रेक्टेंगल। अब 5 by 12 का एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब कि एक साइड 5 होंगे और एक साइड 12। समझ में आ रहा है? देयर आर मोर देन 1000 ways to do it। 1000 तरीके से हो सकता है, राइट। 1000 से भी ज्यादा। इफ यू कैन फाइंड एनीवन दैट्स ग्रेट। और अगर आपको एक भी आए तो दैट इज रियली ग्रेट, बट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। नाउ अगेन वन गेम इज गिवन। इट्स अ गेम। हियर इज अ चेस बोर्ड। चेस तो हम सब खेलते हैं और सबने खेला ही होगा, और अगर किसी ने नहीं खेला होगा तो ऑब्वियसली देखा तो होगा ही, है ना। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स। अब आपको क्या करना है, 12 शेप से इसको हमको करना है, जैसे कि हमने आगे किया था ना, ऐसे 1 2 3 4 5 वाला ही, राइट। 5 वाला ही शेप से। तो आपको सिर्फ एक ये गेम दी है, उसको कलर करना है, राइट। जैसे ही आपको इसमें समझ में आता जाए 5 सेट ऑफ 12 शेप्स का, तो आपको क्या करते जाना है, इसमें कलर करना है। इट इज ऑप्शनल, अगर आप नहीं खेलना चाहते, नो प्रॉब्लम, राइट। द फर्स्ट प्लेयर पिक 1 शेप फ्रॉम दिस सेट। और जो फर्स्ट प्लेयर है वो क्या करेगा, वो जो शेप होगा ना वो लेगा। जैसे कि यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे है शेप, तो इसमें से भी आप ले सकते हैं। ये जो शेप है वो ये वाला है ना। सो ये भी 12 शेप होंगे, इसमें भी 12 शेप्स है। तो इसको हमने ऑलरेडी पहले कट किया था, आपको पता ही था। तो ये एक पिक करना है और इसको यहाँ पे ऐसे स्टिक करना है, राइट। जैसे हमने बोला था ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मोर देन 2000 की इसको अरेंज करने के। तो 1 by 1 आपका फ्रेंड अरेंज करेगा। पुट इट ऑन दी बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स। उसको ऐसे बोर्ड पे रखना है तो उसको 5 स्क्वायर्स आ जाए। देखो ऐसे एक लिया तो 5 स्क्वायर्स का एक लिया तो ऐसे कवर किया। फिर आपको और दूसरा शेप लो, फिर उसमें ऐसे रखो, राइट। द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप एंड पुट इट ऑन दी बोर्ड। फिर दूसरा प्लेयर एक यहाँ से शेप लेगा, फिर उसको पुट करो, राइट। ऐसे करके आपको ये पूरा जो पोर्शन है ना उसको कवर कर देना है। द अदर नाउ कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर। आपको तब तक ये खेलना है जब तक कि आपको कोई शेप रखने के लिए जगह ही ना मिले, कि अब तो सब भर गया है, ये शेप 4 ही स्क्वायर बचे हैं, अब तो इसके आगे हो नहीं सकता। तब तक आपको ये गेम खेलते रहना है, राइट। एंड हुएवर पुट्स द लास्ट पीस विंस। और जिसने फिर लास्ट में रख दिया था वही विन होगा, क्योंकि फिर तो आप रख नहीं पाए हो, तो उसने लास्ट में रखा था तो वो विनर होगा। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग गेम, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या? फर्स्ट यू डू दिस, कट दिस शेप्स। तो आप ऐसी भी पजल बनाओ एंड देन यू पुट इट ऑन द चेस। सो विथ 1 कटिंग यू कैन डू 2 गेम्स। तो आप 2 गेम्स, एक पजल भी हो सकती है एंड 1 चेस। सो आपको ये करना है एंड you have to send photographs, but it's okay if you cannot do in 1 day, you can take a week. मैं आपको एक वीक का टाइम दे रही हूँ, राइट। तो एक वीक में तो सबको करना ही करना है। Now
द नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट टॉपिक है मेक योर ओन टाइल। अब टाइल का मतलब क्या होता है? टाइल्स जो होती है वो हमारे घर की फ्लोर पे जो हम बनाते हैं ना एक कवर, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइल्स। हमारे सबके घर पे टाइल्स होगी, राइट? बट किसी के घर पे कुछ बड़ी होगी, किसी के घर पे छोटी होगी, सब डिजाइन अलग अलग होगी, राइट? बट वी ऑल हैव सीन टाइल्स. And see, remember the floor patterns in Math Magic book 4. See, when you were in 4th standard, in your book, what was there? Floor patterns on page number 117 and 119. So I have 4th standard book. You had to choose the correct tile which could be repeated to make pattern so that there were no gaps left. तो आपको पता ही है कि टाइल्स कैसे अरेंज होती है, उसके बीच में गैप्स होता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? टाइल्स को हमको ऐसे अरेंज करना है कि विदाउट गैप्स, कोई गैप उसमें कोई गैप्स हो ही ना, राइट? अंडरस्टैंड? नाउ सी ओवर हियर, Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Now Ziri is a name of girl and she went to the shop. See, these are designs of tiles on the floor. Aren't this beautiful? Can you see this? ये बहुत अच्छी है कि नहीं है? Yes, these are very beautiful. Can you find the tile which is repeated to make each of this floor pattern? Circle a tile in each pattern. अब देखो यहाँ पे क्या करना है? Can you find the tile which is repeated? तो वो जो टाइल्स है वो क्या हो सकती है? ऐसे रिपीट हो सकती है। कि आपको पता है कि टाइल्स है वो ऐसे स्क्वायर शेप में होती है, तो उसको क्या करते हैं हम? ऐसे रिपीट करते जाते हैं तो दूसरा पैटर्न बनता जाता है, राइट? और आपको क्या करना है? और उसमें सर्कल करना है कि कोई भी ऐसा शेप है जिसको हमने यहाँ पे रिपीट किया है टाइल्स बनाने के लिए. सो या हियर वी कैन सी हॉर्सेस लाइक फ्लाइंग हॉर्स, जैसे उड़ रहा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे अगर है ऐसे स्क्वायर वाली, तो ये डिजाइन भी पूरा रिपीट हुआ है, राइट. सो यू फाइंड आउट एंड देन सर्कल. नाउ आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न, जीरी wanted to make her own yellow tile. फिर जीरी ने सोचा कि लेट्स मेक टाइल पैटर्न, मैं भी अपनी कुछ टाइल पैटर्न बनाती हूँ. तो उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं. सी, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. फिर 3 सेंटीमीटर का उसने स्क्वायर लिया, राइट. ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ एनी वन ऑफ दिस साइड ऑन दिस स्क्वायर. फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, समझ रहे हो. एंड ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन द अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर. और दूसरी साइड पे भी उसने ऐसे ही किया जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर. फिर उसने इस बार ये जो ट्राइंगल है ना, वो इसको अंदर ड्रॉ किया. कैसे? फिर उसने क्या किया, कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड. फिर जो इस साइड किया हुआ था उसको उसने क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया, राइट. कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी. एंड व्हाट इज इट एरिया, उसका एरिया क्या होगा वो भी हमको फाइंड करना है. जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर का था, इसका हमने हाफ पोर्शन निकाल लिया. तो एक तो पूरा है, ये देखो यहाँ से ये पूरा है, तो इसका क्या होगा, वी कैन से 2.5, राइट. हमने उसका एक ही पोर्शन निकाला है, सो वी कैन से 2.5. बट वी आर लर्निंग अबाउट दिस टाइल्स. देखो ये जो टाइल पैटर्न है ना, कभी कभी टाइल्स ऐसी ही आती है, बट कुछ ऐसी डिजाइन की है तो परफेक्टली उसमें दूसरी टाइल फिक्स होनी चाहिए, राइट. तो ही विदाउट गैप हम उसको फिक्स कर सकेंगे. नाउ हियर सी, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल. Trace the shape to repeat it on a page. But remember, there must be no gaps between them. आपको भी ऐसी कोई टाइल पैटर्न बनानी है. चार्ट पेपर में आप चार्ट पेपर को कट करो, कलर करो और फिर ऐसे बनाओ, बट विदाउट लिविंग एनी गैप. गैप नहीं होना चाहिए, ओके. एंड जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग अ येलो टाइल. तो जीरी ने भी उसको एक पैटर्न बनाई. यू नाउ नो एरिया ऑफ हर टाइल. अब तो आपको पता चल ही गया है कि उसकी टाइल का एरिया क्या है. सी, ऐसी भी एक पैटर्न बनाई है जीरी ने, राइट.
नाउ सी हियर, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, इसने कितनी टाइल्स यूज की. तो ये आप अपने आप सोचो कि उसने कितनी टाइल्स यूज की है. यहाँ पे आपको एक फुल टाइल दिख रही है, 1 2 3 एंड 4 5 6, राइट. देन 7 8, देन 9 10, देन 11 12 एंड दिस इज 12 एंड हाफ, राइट. बट ये तो मैंने क्विकली काउंट किया है, आप अच्छे से काउंट करो. और ये सब हाफ हाफ है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ 1, ये हाफ हाफ 1. ओके, अंडरस्टैंड, दैट वे वी आर गोइंग टू काउंट. सो टेक केयर, आपको अपने आप ये करना है. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी मेड, और ये जो जीरी ने ये मेड किया है उसका एरिया कितना होगा, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट. एंड नाउ प्रैक्टिस टाइम. See, Ziri tried to make some other tile. She started with a square 2 centimeter side. और ये जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का है. And made shapes like this. और उसने ये 2 सेंटीमीटर से ऐसे शेप्स बनाए हैं. Now see, look at this carefully and find out. अब हमें कुछ यहाँ पे ढूंढना है. So which of these shapes will tile a floor? इसमें से कौन सा शेप होगा वो टाइलिंग के लिए बेस्ट रहेगा. Without any gaps. Discuss what is the area of the shape, और उसका एरिया कितना होगा. Obviously इसका 2 सेंटीमीटर ही होगा, राइट. अब देखो कि ऐसा शेप है, अगर हम ऐसे 5 10 शेप्स लेके आए, इसको बाजू बाजू में रखे, तो ये पॉसिबल है कि एक दूसरे में वो विदाउट गैप फिट हो सकते हैं. अगर ऐसा लेके आए तो भी नहीं हो सकता, इस साइड तो हमें गैप रखना ही पड़ेगा. ये भी सिर्फ यही है. देखो अगर ऐसा ही दूसरा आया तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे. सो हियर आंसर विल बी सी. यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, सी, राइट. नाउ मेक डिजाइन्स इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप्स. कॉपी मीन्स इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ऐसी टाइल्स पैटर्न बनानी है, राइट. एंड नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल आउट ऑफ स्क्वायर्स. फिर आपको अलग अलग टाइल्स जो भी आपको आए स्क्वायर्स में करो. कैन यू डू दिस द सेम विथ अ ट्राइंगल. फिर आप क्या ट्राइंगल से कर सकते हो, तो आप ट्राई करो, ट्राई डूइंग इट, राइट. जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, ट्राई करना है. सो नॉट ओनली स्क्वायर, नॉट ओनली विथ ट्राइंगल्स, यू कैन ट्राई विथ अदर शेप्स ऑल्सो इफ यू वांट, राइट. अगर आपको आता है, आपको ड्राइंग बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें करो अलग अलग डिजाइन, टाइल्स पैटर्न, और ऐसे उसको फिक्स करो कि कोई गैप ना रहे. जैसे हमारे घर की फ्लोर पे होता है, राइट. सारी टाइल्स वो अच्छे से फिक्स होती है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता. सो दैट वे यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड. एंड आई विल सेंड यू PDF of this question answers. This is your homework and you have to do your homework, right? Thank you.